Hello and welcome to our program. Please join me in welcoming young and upcoming author Ravinder Singh. Ravinder, welcome to our program. Thank you. Congratulations on the release of your second novel, Can Love Happen Twice? Thank you so much. That's my first question to you. Can love happen twice? Primarily, I don't have an answer to it. Uh, but nowadays, our current generation talks about this word called ex. Everyone has an or had an ex-boyfriend or an ex-girlfriend. The moment they say they are into a relationship and they had an ex, gives birth to this question that can love really happen twice? I don't have an answer. When I did a poll check on my social networking forum, 75% of people said yes, it can happen twice. But they don't have the reasoning to it. Maybe not all of them, but it's still a question from at my end. Truly, I don't have an answer to it. Okay. Still looking for it. You also say you're an author or a writer by chance. True. Tell us a bit about this chance. My debut novel, I Too Had a Love Story, is based on a true story, in fact, my own story. I am truly an author by chance, and that's the very thing which I have accepted in the prologue of this particular book. I was close to, this engagement day of mine wherein I unfortunately lost my girlfriend in an accident. And that trauma hit me really hard. And I thought I was looking for the way I can cope up with this trauma. Amid a lot of other options of boozing or getting into drugs, and all those negative thoughts were hovering on my head, and I really wanted to vent out the entire emotions. And then one fine day, I just picked up the pen and started writing and penning down all those emotions. So rather than channelizing in form of tears, them in a piece of paper, recalling almost everything that has happened so far in the life. One point of time, I was seeing this, that now that this grief is on paper, I want to share this grief with plenty of people. We all say, share your happiness. It actually doubles, and share your grief. It gets into the half of what you have. That point of time, I thought, let me go ahead and tribute this novel to my girlfriend and invent my own way to bring her back in this world. And I'm so glad that now I believe that in my own way I've been able to successfully bring her back and immortalize your story. Exactly. So the last status on some day back was that 50, 70 years from now, even I won't be here in this world, but my love story will continue to stay back here. So that's the biggest success which I can talk about. Today is also the stage or the age of how relationships are made and broken more quickly than they're made. How does this young generation see relationships? This generation is a lot good in a lot of things, and there's a lot of scope for us to learn on various different shows. Specifically, relationship is one important thing, and that's the reason plenty of social networking sites, for example Facebook, has picked up this very thought of mentioning the relationship. Are you committed? I'm in a relationship which is complicated. So it plays that bigger role in today's generation, and that is the first thing, probably being a guy or being a girl, you want to check about the other person whom you're going to talk to. The generation, the way I see, and this is my own personal opinion, is that many of us are in a rush hour. We want to get things done just like that. Gone is the time people were willing to have remote controls in their hand to start up a TV. Now they think that the moment I think something, the TV should turn on. Right. Something similar is the case with relationship. I'm sad to reveal that when people read my first book, they come back to me through various emails and messages that there were plenty of sad stories happen in their own lives, and that's when I realized that a lot of mistakes were made just because they just wanted to jump over a relationship. They probably wanted to take only 2 hours to think and go and commit to someone, and the moment they open their eyes, we all say love is blind, right? Yes. My whole point is that if you were blind enough to commit someone, continue to be blind. The moment you open your eyes, you say, oh, maine ye kya kar diya hai? And you want to roll back, and then all sort of complexities come out. My one statement here would be that take your time, understand, take a mature decision, and make life a happy place too. And that love is not your weakness but your strength. Exactly. Especially in this country wherein we have been brought up listening to the stories of Laila Majnu. Imagine tomorrow Majnu coming up and saying that Laila was my ex-girlfriend, I have a new Laila here. How stupid that looks like, Why those circumstances? वो जरूरत ही क्यों पड़े कि आज मजनू या लैला को एक नया मजनू नई लैला ढूंढनी पड़ रही है? You're an engineer who's now doing his MBA, soon to be an MBA from one of the best business schools, I would say, in the world, right? And you still want to write full time.
how is this transition for a young person to say, I want a full-time career and I want to be a full-time writer, and yet do his MBA too? Again, I read it somewhere, only busy people can make out time for almost everything and hence they are busy. मुझे लगता है कि आप लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, और सिर्फ ये मैं नहीं, अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो शायद मैं इतने लोगों को जानता हूं जो अपनी रियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी उन्होंने आगे के मुकाम हासिल किए हैं. जिस तरह से मैं देखता हूँ, इवन दो आई से कि मैं फुल टाइम लिखना चाहता हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ के फुल टाइम लिखना चाहता हूँ. आई वांट टू कैरी राइटिंग इन पैरेलल टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो दिन के जो पूरे काम की जो कभी कभी भड़ास होती है, देयर आर अप्स एंड लोज इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन. तो जिस दिन मुझे वो लगता है कि माई डे डिडंट गो दैट वेल, तब मैं शायद किताब उठा के उस पर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू वेंट आउट कि आज पूरे दिन क्या हुआ मेरे साथ. कई बार मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, वो सुबह सुबह का माहौल, खासकर इस टाइम पे जब आपका शो आ रहा होता है, सुबह सुबह की एक चाय के कप के साथ आप गार्डन एरिया में बैठ के लिख रहे हो, it's a whole new thing, new तो आपके लिए एक experience. थेरेपी है. Exactly. तो मुझे शायद ये चाहिए अपने लिए, ताकि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में I'm doing good. और मैं राइटिंग को 9 to 5 की जॉब एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग नहीं बनाना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज माई क्रिएटिव थिंग. ये मेरी एक हॉबी है इस टाइम पे. MBA मेरा सपना था काफ़ी टाइम से, और मैंने काफ़ी सालों तक कोशिश की, एंड माई कंप्लीट ड्रीम वॉज कि मुझे अगर MBA करनी तो एक आईवी लीग ऑफ कॉलेज से ही करनी है, एंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फिट वेल इन दैट. और इनफैक्ट मैंने अपनी पूरी किताब उस करिकुलर के दौरान ही लिखी है. जो कैंपस है ISB का, दैट वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी टू हैपन. लश ग्रीन लॉन्स, हमारे यहाँ पिकॉक्स ऊपर से नीचे उड़ रहे होते हैं. एक राइटर के लिए वो जन्नत है, यू नो. अमी अगर इस तरह का माहौल मुझे कहीं और मिले, शायद दूरदर्शन के केंद्र में अगर मिल जाए, तो शायद मेरे लिए वो बहुत अच्छी जगह होगी. इनफैक्ट कई बार मैं ट्रेन पे जर्नी करते करते लिखने की कोशिश करता हूँ. इट्स द एंटायर थिंग बिल्ड्स अप, आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं, और आप अच्छे लेवल पे जाके सोच सकते हैं चीज़ों को, यू नो. किसी दिन अगर बारिश होगी, वो जो भीनी भीनी खुशबू आती है, वो एक अंदर से किसी चीज़ को एक इंटेंस रिएक्शन देती है कि मुझे कुछ लिखना है इस वक्त. तो उस तरह के जब एहसास से मैं जाता हूँ, तो खुद ब खुद अपने आप समय निकल जाता है चीज़ें करने की. एक्चुअली कभी कभी हमारे मन में जो धारणाएं या भावनाएं होती हैं, उनको एक एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेशन भी एक आर्ट होती है. तो कैसे आपको लगता है कि इसमें एक स्टोरी है जो औरों को भी पसंद आएगी? I'm a silent observer. मैं लोगों को देखता हूँ कि इस वक्त, जैसे अगर मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, मैं अगर द मोमेंट आई वॉक आउट ऑफ द स्टूडियो, प्रॉब्ली आई विल रिकॉल इन द नाइट कि मैं आपसे इंटरेक्ट करता, आपने क्या पहना हुआ था, आपके हेयर स्टाइल क्या था. आई ऑब्जर्व पीपल कि वो किस तरह से, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स चुन रहे हैं. जब लोगों को अपनी आप बीती कहानी पन्नों पे पढ़ने को मिलती है, एक इमोशनल कनेक्ट बनता है. आई थिंक यही चीज़ मैंने अपनी किताबों में दर्शाई, और लोगों ने मुझे वापस आए कहा कि एग्जैक्टली ऐसा तो मैं भी करती हूँ. एक सीन है जिसमें मॉम जाग रही हैं, और वो लड़का रात के 12 बजे कंबल के अंदर छुप के अपनी गर्लफ्रेंड को SMS कर रहा है. एग्जैक्टली वो एहसास कईयों ने फील किया है. वो अपनी मॉम को बताना चाहता है कि मैं आपसे किसी लड़के या किसी लड़की की बात करने चाह रहा हूँ, और वो पूरा माहौल किचन का उस टाइम क्या बना हुआ, प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, और वो फिर सोच रहा है एक बार फिर कोशिश करता हूँ. वो पूरे कोशिश करने का एहसास, वो फेल हो जाना, फिर से ट्राई करना, वो सारा एहसास मेरे हिसाब से जो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता है कि पूरी तरह से कनेक्ट करता है, वो है कि हमारी बॉडी में जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, तो मैं आंखों के लिए कुछ अपने उस पैराग्राफ में, अगर मैं कोई एक सीन डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि वो सीन किस तरह से है, कौन कौन से कलर्स है, वो क्या माहौल है. फॉर द नोज, यू नो, आई वांट टू टेल देम कि किस तरह की स्मेल आ रही है वहाँ पे. अगर एक किचन का सीन है, तो किस तरह की खुशबू वहाँ पे आ रही है. एक्सपीरियंशियल बनाना चाहते हैं. एग्जैक्टली. और मैं दिखा रहा हूँ कि तो सारे सेंस ऑर्गन्स को मैं कुछ जब ऑफर करता हूँ, खुद ब खुद वो पूरा सीन आंखों के सामने आ जाता है. तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि इस तरह से मैं चीज़ों को सर्व करूं, एज रॉ एज नेकेड एज पॉसिबल, जो रियल लाइफ में होता है, दैट कनेक्ट्स वेल विद पीपल. जब कोई कहानी जहन में आती है, जब आप सोचते हो मैं इसको बनाना चाहता हूँ या कहानी लिखना चाहता हूँ, तो आपके लिए कोई साउंडिंग बोर्ड है जिससे आप शेयर करते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड कोई हु इज योर क्रिटिक, हु क्रिटिक्स यू बिफोर द पब्लिशर और द एडिटर गोस इन? मेरे इमीडिएट दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे पहली बुक के टाइम भी काफ़ी उन्होंने हेल्प ऑफर की थी, और इस बार भी. और मैं उस क्लोज ग्रुप में भी काफ़ी वेरिएशन लेके आता हूँ, ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं एक ही माइंडसेट से चल रहा हूँ. इमीडिएट लोग हैं जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, उनके साथ मैं डिबेट भी कर रहा होता हूँ कई बार कि क्यों इस मुद्दे पे कुछ लिखा जाना चाहिए, और आपका क्या टेक है, और मैं ये कह रहा हूँ, आप कितने हद तक सहमत हैं उस चीज़ से.
एंड ऑफ द डे मैं करता वही हूँ जो मुझे सही लग रहा होता है, क्योंकि वो मेरा थॉट प्रोसेस, मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ, चाहे मैं उनके थॉट प्रोसेस से सहमत हूँ ना हूँ, बट डेफिनेटली मैं उनके थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस काफ़ी होता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प मी राइटिंग द फर्स्ट बुक. किसी ने एडिटिंग कर दी उसकी, किसी ने कहा कि यार इस तरह से क्यों बता रहा कहानी, व्हाई डोंट यू पुट द अदर पर्सपेक्टिव. किसी ने कहा कि हाँ तू पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, यू नो राइट द राइट स्टेटमेंट आउट हियर. किसी ने काफ़ी सारी खामियां बताई कि तुमने ये डेट लिखी और मंडे उस डेट को, तो फ्राइडे इस डेट को आना चाहिए, राइट, वो कॉम्बिनेशन सही मैच नहीं कर रहा. तो सिंटैक्टिकली, ग्रामेटिकली, थियोरिटिकली हर तरह से मैंने उनकी एडवाइस ली है, और अभी काफ़ी हद तक खामियां दिखती हैं. एज एन ऑथर द वन थिंग इज दैट कि एवरी टाइम आई री रीड माई ओन वर्क, मुझे लगता है यार यहाँ पे कुछ और अच्छा किया जा सकता था. आई थिंक दैट्स ए क्रिएटिविटी थिंग, वो जो बहुत लोग उससे फाइट करते हैं, बट देयर इज अ नो रन आउट. आप अपनी प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. यू कैन नेवर रीच 1 out of 1, यू कैन बी क्लोज टू 1, कि हाँ मैंने इतने परसेंट सही कर लिया. that's a take I So take. you're happy with feedback? I'm very much. Even negative feedbacks, I love them. Whenever people turn up on Facebook, they say कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा, I make it point कि मैं उसको delete ना करूँ उस feedback को, keep it there and let people also talk about that कि क्या वो सचमुच सही है, and I also take a learning from it. Ravinder,